جب آئین توڑا گیا تھا، یہ اس وقت یہ جج کدھر تھے، یہ عدالتیں کدھر تھی، یہ ادارے کدھر تھے، یہ حکومت کدھر تھی؟ اس وقت اگر انہیں نہیں پوچھا گیا، آج انہیں کیا چیز، آج اس کا مطلب ہے یہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں جو ہمارے ملک کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ہمارے سی پیک کو تباہ کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے ملک کو وہ دیکھنا نہیں چاہتی، آج ان کے سہولت کار اور ان کے وہ جو ہیں رضاکار، ان کے کہنے پہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ تو فوج اور عوام کو آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے، عوام کے دلوں میں فوج کے لیے نفرت پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ یہ میں آپ کے وساقت سے پوری دنیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی افواج ہے، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ آپ کے جو غلط نظریے یہ ان کے پیچھے نہیں جانے والی، ان کا اپنا نظریہ ہے، یہ اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میری طرف سے جج صاحبان سے گزارش ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس پہ غور کرتے ہوئے اس فیصلے کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہوئے اس کو ختم کر کے نہ تو کم سے کم اپنی فوج کے اوپر جو انہوں نے دھباگ لگایا ہے نا اسے ختم کرے، یہ ورنہ یہ ساری زندگی غیر ملکی قوموں کے لیے یہ ایک رہے گا کہ ان کی اپنی فوج میں گردار ہے۔ لہذا برائے مہربانی کرتے ہوئے اس فیصلوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ختم کیا جائے، اور جو 40 سال اس نے لگائے ہیں نا مشرف نے، اس کو دیکھتے ہوئے اس دھبے کو ختم کر کے نا تو اپنی فوج کو سرخرو کرنے کا موقع دیا جائے، ورنہ یہ ان کے لیے ایک باہر کے ملک ہماری عوام کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہماری فوج پہ ایک جون سا یہ دھبا لگا گئے ہیں۔ جج صاحبان جونسن ساری زندگی کے انہوں نے دھبا لگا دیا ہے جو یہ رہے گا، تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، اس بارے میں ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو ابھی حالیہ جنرل صاحب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اس سے پہلے جو مطلب یہ شروعات اس ٹائم سے کی جائے جب پہلی دفعہ آئین توڑا گیا ہے، جس نے بھی آئین توڑنے کی ابتدا کی ہے وہاں سے سزا و جزا کا عمل شروع کیا جائے، نہ کہ ابھی آپ صدر صاحب کو پکڑ لیں، وہ بھی اس حالت میں جب وہ بستر مرگ میں ہیں۔ تو جب بندہ اقتدار میں ہے تو عدالتیں اس ٹائم بھی تھیں، اس ٹائم انصاف کدھر تھا؟ انصاف کا تقاضا تبھی پورا ہوتا ہے کہ جو حضرت سروس جج ہے، حضرت سروس حکمران کے خلاف فیصلہ دے، تب انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ کہ جو انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے ہماری پاک آرمی نے اپنے ملک کے دفاع کا، اپنی عوام کے دفاع کا، کیا یہ غداری کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنا بھی اپنی فوج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذات پہ الزام لگانا ہے کہ یہی فوج ہماری ساری رات بارڈروں پہ ہمارے دفاع کے لیے ڈیوٹی دیتی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ ہمارے لیے دیتی ہے، اپنے وطن کے لیے دیتی ہے۔ کیا یہ اپنے وطن سے غداری کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک سیاست ہے، فوج کو اور عوام کو یہ ٹکرایا جا رہا ہے تاکہ یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو، جس سے ملک کامیاب نہ ہو۔ آنے والے وقتوں میں ہمارا ملک ماشاءاللہ بہت کامیابی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے اور جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کبھی بھی نہیں چاہتی، یہ یہودی لابی ہے، خاص طور انڈین اور اسرائیل، یہ جو لابی ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے اور دنیا کے منہ پہ آئے، کبھی بھی وہ نہیں یہ چاہتے۔ دوسرا نمبر پہ جو ہمارے جج صاحب نے سزا سنائی ہے، میں تو کہتا ہوں پہلے اس جج کا بایو ڈیٹا نکالیں کہ یہ کون سی ایجنسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہیں اس کو راہ کی طرف سے فنڈ نہیں آ رہا، اسرائیل کی طرف سے فنڈ نہیں آ رہا۔ اس سے پہلے بھی جج آئے ہیں، اس سے سینئر جج تھے، وہ اس سے زیادہ پڑھے لکھے جج تھے، انہوں نے یہ کیس نہیں نکالا یا یہ سزا نہیں سنائی۔ اس جج کا بایو ڈیٹا پہلے نکالیں کہ یہ کون ہے، یہ ملک کا خیر خواہ ہے یا ملک کا غدار؟ تو مجھے یہ لگ رہا ہے فوج کو غدار کہنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جرم ہے۔ کیوں؟ یہ فوج ہماری بنائی ہوئی ہے، ہمارے بھائی اس میں شامل ہیں، ہم شامل ہیں، یہ فوج ہم ہیں، یہ فوج نہیں ہے، یہ فوج ہم ہیں، ہم عوام فوج ہیں۔ تو یہ جو ہمارے جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے یہ انتہائی غلط فیصلہ سنایا ہے، انہوں نے دوسرے لفظوں میں سیاسی فیصلہ سنایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ غدار کہتے ہو، نواز شریف کو بولو جس نے کارگل سے پاکستانی فوج کو کم بیک کرنے کا آرڈر دیا، اور کتنے ہمارے لاکھوں فوجی وہاں پہ شہید ہوئے۔ ہم اسے غدار تو نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں وہ تو بہت اعلیٰ ہے، وہ تو بڑا نسلی بندہ ہے،
मरवाया तो हमारे कारगिल के फौजियों को उसने है, हमारे जनरल साहब ने तो नहीं मरवाया ना। या तो जनरल साहब के आर्डर पे पीछे आते तो हम कहते यार ये जनरल साहब ने गलत फैसला दिया है, मगर जनरल साहब को फैसला देने वाले मियां नवाज शरीफ साहब से मैं समझता हूँ कि वो गद्दार हैं। 5 साल वो लगा के गए हैं, कोई जज नहीं बोला, किसी ने गद्दारी का केस नहीं फैसला सुनाया। 5 साल जरदारी साहब लगा के गए हैं, किसी ने फैसला नहीं सुनाया। क्या आज जो जज है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको ज़्यादा लॉ आता है, या इसको ज़्यादा वो पता है कि इस आइन तोड़ा है? इससे पहले भी जजों के दौर में ये आइन टूटा हुआ था। अच्छा, जब आइन तोड़ा गया था असम्बली किस जगह पे थी उस वक्त? असम्बली ने क्यों नहीं इसका एक्शन लिया कि ये आइन तोड़ रहे हैं? क्या मुशर्रफ इनको गोली मार देता? उस वक्त ये असम्बली में बैठ के सारे खाते थे, ठीक है। अब जब खाने वाला है नहीं है तो ये अब उसी के ख़िलाफ़ हो गई है। और दूसरा मेरा ये आपको जवाब है कि अब जिस हालत में वो है, जो इन्होंने सज़ा सुनाई है, वो तो इसी सदमे में मर जाएगा, उसको मारने की क्या ज़रूरत है? ये भाई फ़ौज है, और बैनुल-अक़वामी दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ ये पाकिस्तान की फ़ौज है, इसराइल की फ़ौज या इंडिया की फ़ौज बुज़दल फ़ौज नहीं है, शराब पीने वाली फ़ौज नहीं है। ये ख़ानदानी फ़ौज है, मुसलमान फ़ौज है, हमारे अंदर मुसलमानत का जज्बा है, ठीक है। हम फ़ौज के बिल्कुल साथ खड़े हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट में बस और भी है, वो आपसे ये सवाल करना चाहूँगा। बड़ी अच्छी आपने बातें की, हज़ारों लाखों की तादाद में जुर्म पेशा अफराद जो है ना पाकिस्तान में मौजूद हैं, फिर एक ही मौक़िफ़ को क्यों लेके आगे चला जाए? मतलब ज़ाहिर सी बात है, और भी ऐसे केसेस बहुत से थे। अगर लाल मस्जिद के केस चला जाता तो वो एक अलग बात थी। सर, लाल मस्जिद का केस देखा जाए जहाँ तक, या बुख्ती का केस देखा जाए, अब बुख्ती तो सारा इंडिया से पैसा ले रहा था, इसराइल से पैसा ले रहा था, उसके पास तो सारा इंडिया की करेंसी निकली है, वो पाकिस्तान का कैसे खैर खां हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। उसको मारा है, इसने ठीक किया है। एक अकेले उस वडेरे में इतनी पावर कि हुकूमत चल के उसके पास जा रही है, तो वो आगे से कह रहा है मैं आपकी मानता ही नहीं हूँ, आप कौन हो? हम तो अलग, ये बलूचिस्तान ही हम अलग बनाएंगे, हम तो इंडिया के साथ हैं, हम अफ़गानिस्तान के साथ हैं। ये पाकिस्तान बुख्ती के बाप का नहीं है, ये पाकिस्तान अवाम का है, पाकिस्तानी अवाम का ये पाकिस्तान है, ठीक है ना। ये कलमे के नज़रिए से बना है, बुख्ती के कहने के से नहीं ये बना हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो एक ही आपका सवाल था कि एक ही साइड पे चल रहे हैं, ये तो एक सियासी, क्या कहते हैं कि सियासी इंतकाम वाली बात है, ठीक है। जैसे कि हमारे इमरान खान साहब आजकल लगे हुए हैं करप्शन पे जोर। मैं आपको बताता चलूँ कि एक पानी वाली टंकी है, उसमें पानी ऊपर से हम डाल रहे हैं, नीचे से उसकी लीकेज हो रही है, वो कैसे टंकी फुल होगी? कभी भी नहीं फुल हो सकती। इमरान खान साहब ने आके एक बहुत अच्छा इक़दाम किया, उस टंकी की जो लीकेज है ना, उस पर हाथ रख दिया है, वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं। ये बात नहीं कि नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं। वो अपने इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। अब तकलीफ़ किसको हो रही है? जो चोर हैं। अगर मैंने चोरी नहीं की, मुझे क्या तकलीफ़ है? आए मेरे पास, आए इदारे हैं, मेरे से सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। जब मैं तकलीफ़ की होगी मैं तो नज़रें छुपाऊंगा, ठीक है। इमरान खान साहब से हमारे इदारों को या हमारे जो अपोजिशन है उनको ये तकलीफ़ हो रही है कि ये खुद खा नहीं रहा, साथ हमें भी खाने नहीं दे रहा, ऊपर से हमें ये नशर भी कर रहा है। जैसा कि पिछले दिनों में हमने मीडिया में सुना था कि नवाज शरीफ और जरदारी पैसे देने के लिए तैयार हैं कि हमें रिहा किया जाए, मगर उनका एक सवाल था कि हमें मीडिया पे शो ना किया जाए। खान साहब ने कहा जी हम मीडिया पे क्यों नहीं शो करेंगे, ये पैसा अवाम का है, अवाम को पता होना चाहिए कि हमने इतने पैसे इनसे वसूल किए हैं। मेरे भाई, जो चोरी करते हैं वही उस बरामदी भी वही करता है, जिसने चोरी नहीं की हुई होती वो कभी भी बरामदी नहीं करवाता। पीटीआई हुकूमत में से 1.5 साल हो चुका है ना, जो इसको तरक्की की तरफ लेके जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इसे रोक रही हैं। सर, ताकतें तो आप देखें, जब से कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क बनाया है, कितनी जद्दोजहद के साथ बनाया है, उस वक़्त से ये ताकतें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। क्यों? पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है, कोयटा का एरिया है, शुमाली इलाका जात हैं, वो माशाल्लाह मदनियात से भरा हुआ है। पूरी दुनिया की नज़रें उस मदनियात पे लगी हुई हैं। उनकी कोशिश है कि ये हिस्सा हमें मिले, हम जाने तो ये जाने, मदनियात हम इस्तेमाल करें। कोई अपनी लस्सी को तो नहीं कहता ना कि मेरी लस्सी जो है ये बुरी है, मगर वो कह रहे हैं कि हम बुरे हैं, पाकिस्तान की ये जगह ठीक है, हमें ये जगह चाहिए। अब आप देखें, अब सी पैक पे हमें पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में कितनी ज़्यादा तरक्की मिलने वाली है, कितनी ज़्यादा सहूलत मिलने वाली है। पूरी दुनिया से जो चीज़ जाएगी वो पाकिस्तान से होके जाएगी। पाकिस्तान की अवाम को फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा है। मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूँ,
किसी एक बंदे की नहीं कर रहा, या मैं अपनी ज़ात की नहीं कर रहा, पाकिस्तान की कर रहा हूँ। पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है, मगर दुनिया चाह रही है कि अगर ये पाकिस्तान ऊपर आ गया, ये आज भूखे हैं, खाली हैं, कंगाल हैं, तो इन्होंने एटम बना लिया है, एटम बना लिया है। तो जब इनका पेट भर जाएगा, इनके पास सारी सहूलतें होंगी, मदनियात की इनकम होगी, पैसा होगा, तो ये कितने एटम बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है ना, तो एटम इस्लामी ममालिक में सबसे पहले पाकिस्तान के पास है। पूरी दुनिया में किसी इस्लामी ममालिक के पास एटम नहीं है। हम इस्लामी पावर हैं, एटमी पावर हैं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो रात लिखी है कब्र में, वो कब्र में ही है, वो बाहर नहीं हो सकती। हम इन यहूदियों से क्यों डरें, हम इनसे लेके खाते हैं। जो लेके खाते होंगे वो डरते होंगे, जिनके बिजनेस इनके बाहर हैं वो डरते होंगे, जिनके बच्चे इनके पास पढ़ते हैं वो डरते होंगे। हम कारोबार यहाँ करते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हम इधर ही, हमारी परवरिश इधर की है, हमने जाने भी इधर ही देनी है। हम क्यों इनसे डरें। हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, हम अपने मुल्क के लिए करेंगे, अपनी अवाम के लिए करेंगे। हमारी कोशिश है कि हमारी अवाम को हमारे से ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जब ये अब ये देखें कि जैसे करतारपुर का इसने रास्ता खोल दिया है, मैं समझता हूँ ये अच्छा रास्ता खोला है इसने, इससे इमरान खान ने आने वाले वक्तों में इसमें आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। जो भी उधर से बंदा आएगा वो ज़हरी बात है कि वो इधर से ख़रीदारी करेगा। जब ख़रीदारी करेगा वो पैसा अपने मुल्क का आपके मुल्क को दे के जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और आने वाले 4-5 साल अगर ये करतारपुर का रास्ता खुला रहा तो हमारा इंशाल्लाह जितना कर्ज़ा है ये सिख बरादरी सारा उतार देगी। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ।